हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मीडिया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? Do you surf the internet, and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet, and several other forms of communication? This word is media. In this chapter, you will read more about the media. You will find out what is required to make it work, as well as the ways in which the media affects our daily lives. Can you think of one thing that you have learned from the media this week? Everything ranging from the stall at the local fair to the TV program that you see on TV can be called media. Media is the plural form of the word medium, and it describes the various ways through which we communicate in society. Because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. TV, radio, and newspapers are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया से हम क्या समझते हैं? मीडिया का मतलब है कि जो भी हमें कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से पास होती है या हम कम्युनिकेट कर पाते हैं तो उसको हम मीडिया कहते हैं। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुबह रेडियो से न्यूज़ सुनते हैं, या इंटरनेट पे अगर हम कोई न्यूज़ देखते हैं या कुछ भी हम देखते हैं तो उससे हमें समझ आता है कि ये मीडिया है। असली मीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म है मीडियम, किसी के थ्रू जो हमें चीज़ मिल जाए। ज़रिया, जिसको हम बोलेंगे ज़रिया, तो वही जो कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं, चाहे वो विजुअल हो चाहे वो ऑडियो हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये मीडिया है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन पास आउट होती है किसी चीज़ के बारे में। सुबह के न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, शाम का हम रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं। दिन भर कोई वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, हमारी स्टेट में क्या चल रहा है, जो हमें इन्फॉर्मेशंस आती हैं। कुछ न्यू लॉज बन गए, कुछ रूल्स चेंज हो गए, अब करोना आया, करोना के कितने केसेस आए, कहाँ पे लो हो रहा है, कहाँ पे हाई हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती हैं? हमें न्यूज़पेपर या टीवी या रेडियो से ही मिलती है, तो इसको हम बोलेंगे ये मीडिया है। अब मास मीडिया क्या हुआ? जिससे मिलियंस ऑफ पीपल के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे जिस मीडियम के थ्रू, उसे हम बोलेंगे ये मास मीडिया। मासिस हो गए बहुत सारे लोग, तो उसको बोलेंगे मास मीडिया। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इट वुड probably be difficult for you to imagine your life without the media. But cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. अब जो टेक्नोलॉजी है जो मीडिया यूज़ करता है वो भी रोज़ रोज़ चेंज हो जाती है। इंटरनेट के आने से वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब लाइव न्यूज़ आती है, हमें उसी टाइम दिखाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो जाता है, क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके अंदर 4G इंटरनेट है, तो वो उसकी वजह से भी एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है। Newspapers, televisions, and radio can reach millions of people because they use certain technologies. We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media, and TV and radio as the electronic media. Why do you think newspapers are called print media? As you read further, you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. Changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also improves the quality of sound and the images that you see. But technology does more than this.
It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as members of a larger global world. Television images travel huge distances through satellites and cables. This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of storm that has hit the coast of Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. टेक्नोलॉजी की वजह से यही कह रहे हैं कि अब जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है तो उस मीडिया को हम उसी के साथ रेफ़र करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर को हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। इसलिए कह रहे हैं कि हर डे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है उसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पास आउट होता है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छा होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा, उतनी ईजिली जो मीडिया है वो लोगों तक पहुंचेगा। अब वर्ल्ड की न्यूज़, फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ हो जाए तो वो हमें जम्मू में बैठ के पता चल जाता है। अब हम कार्टून्स देखते हैं, कार्टून्स इंडिया में तो नहीं बनते, कार्टून्स यूनाइटेड स्टेट्स या जापान में बनते हैं, लेकिन वो हम बैठ के जम्मू में देख रहे हैं या कश्मीर में देख रहे हैं। तो ये कितना बड़ा मीडिया का एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है कि हम ये चीज़ यहाँ पे देख पाते हैं। मीडिया एंड मनी, द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज are expensive. Just think about the TV studio in which the newsreader sits. It has lights, cameras, sound, recorders, transmission satellites, etc. all of which cost a lot of money. अब मीडिया के लिए मनी भी चाहिए। अब आप अगर न्यूज़ देखते हो रोज़ शाम को, कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हो तो आप देखते हो जो न्यूज़ रिपोर्टर वो न्यूज़ पढ़ता है तो उसका अपना एक रूम होता है जिसके अंदर बड़ी सी मतलब वो न्यूज़ हमें वो दिखा रहा होता है हाईलाइट कर करके। उसके पास सामने लैपटॉप होता है, डेस्क होता है, कैमरा होता है उसके आसपास, उसकी साउंड रूम होता है, उनके पास रिकॉर्डर्स होते हैं जिसमें कोई और आवाज़ मतलब हमें बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ जाए उनकी, कोई बीच में साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए वैसे न्यूज़ रूम बनाने के लिए। उनके कॉस्ट्यूम्स, वो क्या कपड़े पहनते हैं, उनके मेकअप मैन होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े रूम्स को वो करना पड़ता है, पहले साउंड फ्री नॉइज़ फ्री बनाना पड़ता है कि और कोई बाहर की नॉइज़ उस रूम के अंदर ना जाए, कि लोगों तक बिल्कुल एकदम क्लियर आवाज़ पहुँचे। तो वो स्पेशली डिज़ाइंड रूम्स होते हैं, फर्निश्ड होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या पैसा चाहिए, तभी तो न्यूज़ रूम बनेगा। ऐसे कोई भी उठ के न्यूज़ नहीं पढ़ सकता। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. This includes those who look after the cameras and lights. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do its work. As a result, most television channels and newspapers are part of big business hours. वही इसमें बताया गया कि खाली न्यूज़ रीडर ही नहीं होता जो हम देख पाते हैं, जो न्यूज़ पढ़ रहा होता है, उसके साथ और भी वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपना अपना काम होता है। टेक्नीशियंस होते हैं जो साउंड को एडिट करने वाले होते हैं, वहाँ पे मेकअप मैन्स होते हैं, कैमरा लेके खड़े होते हैं, कुछ लोग लाइट्स लेके खड़े होते हैं। तो ये एक ही बंदे का काम नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय रखना पड़ता है जो पैसे मिलते हैं उनको। Mass media is constantly thinking of ways to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each hour, and so you are often watching the same image over and over again. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is advertised. उसके बाद जब अब न्यूज़ चैनल वाले भी पैसा कमाते हैं, कैसे कि वो लोग एडवर्टीज़मेंट ऐड आती है जो उसके अंदर, जैसे जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं बीच में आपने देखा होगा ऐड आती है, मतलब किसी भी चीज़ की, जैम की ऐड आती है, चॉकलेट की ऐड आती है, ऑयल की ऐड आती है, सोप की, मतलब
ये वाला साबुन ले लो, या फिर यहाँ पे ये वाला मोबाइल ख़रीदो, या कुछ भी कपड़ों की ऐड आती है, या आजकल ज़्यादातर ये सर्फ़ वगैरह, कपड़े धोने की साबुन, नहाने की साबुन, इन सब की ऐड आती है। तो वो वही ऐड से वो लोग पैसा कमाते हैं। हम बार बार वो ऐड देखते हैं। क्रिकेट मैच जब हम देखते हैं तब आप देखो एक ही ऐड बार बार कोका कोला की ऐड आएगी रिपीटेडली, या फिर थम्स अप की आएगी, या फिर किसी और चीज़ की आएगी, या म्यूचुअल फंड्स की आएगी, बैंक की ऐड आएगी, साबुन की ऐड आएगी। तो वो रिपीटेडली शो करते रहते हैं उन एड्स को, ताकि लोग बार बार देखें और उसके बाद वही सामान जाके वो बाज़ार से ख़रीदें।